renowned online platforms such as LeetCode, HackerRank, CodeChef, Top Coders, and Coding Ninjas. So this is my kind request to all the dear participants. Make the session interactive so that you can achieve for what you are here. Thank you so much. Over to you, sir. Okay, so a very good morning, all of you. So let's start today's sessions. So yesterday we have also discussed about the data structure in which we have discussed the links. Okay, so I'm continuing with that topic and we will today get into the depth of the tree data structure. That is the next data structure. And if you see the competitive questions, competitive programming questions, or the basics of just wait a second. Ma'am, I'm not able to share my screen. Can you make me the presenter? So the data structure tree is very important. So if we see the linear data structures, okay, so in which we have, we will go through the linked list. But if we have hierarchical data structures in which we have two topics, that is the tree and the graph. Okay. And these both are very, very important. Like there are a lot of questions that we will uh, solve with the help of these data structures. Okay, so both have their own advantages. Okay, and sometimes we can divide our problems into further parts, and that each further parts will be solved with the help of these data structures. So if we talk about the BFS, DFS in the graph, then we can find out like a number of questions that has been solved. Okay, and if you see the competitive programming platforms like Hacker and LeetCode, in which you found a numerous ways to solve problems, in which the one of the most favorite data structure is your tree and graph. Okay. एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Participants, due to some network issue, sir has disconnected. So we wait for some seconds or minutes. Okay, so there was some network issue. So I'm talking about the
platform, the competitive platform, and on the competitive program, we can find on very large number of problems. Those all are dealing with these nodes. Okay, these things. Okay. Yesterday topic, in last topic, I have discussed about the linked list, है ना? And in linked list specifically, I have discussed the singly linked list. Okay, so the single linked list. So the single linked list is also, we can say, we can solve a problem that can be linearly distinguishable. So in the interview or in any technical sections of programming languages, okay, the data structures, you can find a number of questions like reverse a linked list. You have to detect the loop in a linked list, find out the middle elements of a linked list. Okay, you have to apply the binary search on the linked list. So these are a very famous questions. Those are related to your links. So you can find out these all questions into the lead code, the HackerRank, or the GFG platform. So you can solve these questions. Okay. Now, in the today topic, we are going to start with the tree. But before that, like as we can say, specifically the tree is the special type of tree that we will discuss today is binary tree. Okay, so we will start from binary tree, but the representation, the storing structures of this binary tree can be handled with array as well as the linked list. Okay. So that's why I give you a little bit details about like the linked list. So how a binary tree will be represented with the help of linked list. And in the second, we will discuss how the array is important into the linked list. Okay. So if we see any list, है ना? So let me create a simple binary tree. Okay, so the binary tree that have at most 2 child. Okay, किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड अगर होंगे तो हम उसको बाइनरी ट्री कहेंगे. ठीक है. सो जैसे इस एग्जांपल में मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का मैं ट्री बना रहा हूँ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी इंस्टेंस पे एक पर्टिकुलर नोड के 2 चाइल्ड है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड है. लाइक आपको कभी भी इस टाइप का नहीं मिलेगा कि एक नोड के 3 चाइल्ड. ओके, सो दिस इज नॉट कॉल्ड अ बाइनरी ट्री. So in this way, some disturbance is there. Just look up. Okay, so here अगर ये ट्री हमें स्टोर करना होगा तो द मेन प्रॉब्लम क्या है कि लिंक लिस्ट में हम लोग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे या लिंक लिस्ट यूज करेंगे तो उसको तो आराम से हम लोग दिखा पाते है ना, कि इस तरह से एक नोड होगा, दूसरा नोड इस तरह से कनेक्टेड होगा, तो इसको हम आराम से देख भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं. बट अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री को हम लोग पेपर पे तो काफी आराम से डिजाइन कर लेते हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं. क्या ये ट्री हमारे कंप्यूटर में सेव होगा? क्योंकि जब तक ये कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, जब तक ये मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, तब तक हम इस पे ऑपरेशंस नहीं करा सकते, है ना. तो द फर्स्ट थिंग कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री, है ना. पहला टॉपिक तो यही है, लाइक इफ वी हैव टू टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर. ओके, अगर आपको यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेना है कि जस्ट यू हैव टू एंटर ए ट्री एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द you have to perform the various operations on that tree. Okay, so first you have to store that tree in the computer memory. So ऐसा कोई तो वेरिएबल्स होगा नहीं कि हमने a नाम का एक वेरिएबल बना लिया, लाइक मैंने यहाँ पे int a नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसमें टाइम स्टोर कर दिया. ओके, सो इस तरह से तो स्टोर नहीं हो पाएगा. अगर हमें ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम इसको स्टोर करेंगे, है ना. सो दैट्स वाई इन द ट्री द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड अ ट्री रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्री रिप्रेजेंटेशन.
कि हम एक ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। द फर्स्ट वे इज कॉल्ड एरे, हम एरे का यूज कर सकते हैं। द सेकंड इज कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट, तो हम लिंक्ड लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम एरे की बात करें तो हाउ वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स इनटू एरे, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ एक चीज, एक रूल बनानी होती है ना। तो रूल क्या होगा कि रूल यही होगा कि आपको सबसे पहले ना एक सिंगल डायमेंशन एरे बनाना है। ओके, इस टाइप से मान लो हमने कुछ एक एरे बना लिया, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस आएंगे तो उसी लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर लिंक लिस्ट वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब मान लो इसकी कुछ इंडेक्सिंग आ गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो पहला नोड है, दिस इज हेयर ए, सो द ए इज कॉल्ड हेयर रूट नोड। ओके, तो रूट नोड का जो वैल्यू होगा वो स्टोर होगा एज ए फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो हमने ए को स्टोर किसमें कर दिया, 0 इंडेक्स। अब किसी भी नोड के दो पार्ट्स होंगे, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो लेफ्ट वाले को हम लोग कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड राइट चाइल्ड, दिस वन इज कॉल्ड राइट चाइल्ड। तो हर नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे। अब जैसे अगर मैं बी की बात करूं, सो द बी डज नॉट हैव द राइट चाइल्ड, ओके, द सी डज नॉट हैव द लेफ्ट चाइल्ड, the E does not have the right child. And if you talk about the D and F, so the D and F both nodes does not have any child. Okay, so जिस नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे, है ना, जिस नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे, दैट नोड इज कॉल्ड लीफ नोड, उसको हम कहते हैं लीफ नोड। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो A जो है वो स्टोर हो जाएगा 0 पे, जो B है, जो लेफ्ट चाइल्ड है वो स्टोर होगा A पे 1 पे, जो C है वो स्टोर होगा 2 पे। ठीक है, या अगर आप काउंटिंग भी करोगे तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये हो गया 0, इसको काउंटिंग कर लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2। नाउ क्वेश्चन आता है कि डी कहाँ पे स्टोर होगा। ओके, तो आप यहां से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी जो है वो 2 के बाद फिर लेफ्ट में अगर हम शुरू करेंगे तो यही आएगा, तो ये डी हो गया 3 पे, तो डी आ गया हमारा 3। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा ब्लैंक है ना, तो 4 को हम छोड़ देंगे, दिस इज आवर ब्लैंक। ओके, इसको छोड़ दिया हमने। नाउ उसके बाद अगर मैं 5 की बात करूं तो क्योंकि ये जो है ये हमारा आएगा 5 पे जो कि हमारा ब्लैंक है, ये हमारा आएगा 6 पे जो कि ब्लैंक है। ओके, तो 3 4 4 ब्लैंक आ गया, ये 5 है, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 5 भी हमारा ब्लैंक रहेगा। नाउ द 6 जो है वो हमारा आएगा ई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब नाउ आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ये दोनों ब्लैंक हैं, इसके ये दोनों ब्लैंक है, इसके ये दोनों ब्लैंक है, देन उसके बाद इसकी बारी आएगी। ओके, दैट मीन्स कि 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें ये और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस वाले में एक जगह ऐसा आएगा जिसमें आएगी 13, तो 13 पे हम स्टोर करेंगे एफ को, और 14 हमारा हो जाएगा। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि हम ये लाइक कैलकुलेशंस करके करें। दूसरा एक मैथमेटिकल भी हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस पे, जिसके बेसिस पे हम हर नोड का पता कर सकते हैं कि उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे जाएगा, उसका राइट चाइल्ड कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया कि हम एक एरे लेंगे और उसमें इस हिसाब से स्टोर करते चले जाएंगे, तो हमारा वो एक ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा तरीका मैं मैथमेटिक्स वाला बता रहा हूँ, जिसको भी अभी यहीं पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और फिर आप कंफर्म कर पाओगे कि कौन सा सही काम कर रहा है, इफेक्टिवली सही कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास कोई ट्री है तो उस ट्री को स्टोर करने के लिए जो एरे लेंगे उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो एरे का साइज पता करने का क्या फंडा है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि अगर कोई हमने ट्री बनाया है, कोई बाइनरी ट्री बनाया है, तो उस बाइनरी ट्री में
टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स कितने जाएंगे अगर उसकी हाइट कुछ दी हुई। तो आप जैसे ये देखो कि यहाँ पे जैसे सपोज करो एक ये नोड है, यहाँ पे एक है, एक, तो इसकी हाइट हम कितनी मान के सकते हैं, इसकी हाइट चूंकि एक एज है इसमें कनेक्टेड लॉन्गेस्ट में एक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जितनी आपकी हाइट है इसकी इसकी हाइट में मान के चलो कि ये एक एज है। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पूरे लेवल पे, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यहाँ पे देखिए हाइट इसकी 2 हो गई। ओके, और अगर हम लेवल देखें तो ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल। ओके, तो लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2:3 - 1, दैट इज की 8 - 1 मतलब 7। तो इसमें देखिए मैक्सिमम कितने नोड्स हैं, 4 5 6 7, 7 नोड्स हैं। और अगर आपको ये एज के थ्रू पता करना है तो एज के थ्रू पता करना है तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज कितने हैं लॉन्गेस्ट पाथ में, मैक्सिमम एज कितने हैं, तो मैक्सिमम एज 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:h+1 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो एच की वैल्यू कितनी है इसमें, एच इज कॉल्ड हाइट। ओके, और हाइट को हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट पाथ में जितने नंबर ऑफ हमारे एजेस हैं, ओके, उसको हम करते हैं हाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2:3, हाइट 2 है तो 2:3 - 1 दैट इज ऑल्सो 7। ओके, तो अगर हमें हाइट पता हो किसी भी ट्री का, ओके, या हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पता हो लॉन्गेस्ट पाथ में तो भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं इस वाले ट्री की बात करूं, ऊपर वाले ट्री की बात करूं, मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर दे रहा हूं इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि अगर कोई ट्री हमें स्टोर करनी है तो बताइए हमें साइज ऑफ एरे क्या लें, है ना। जब तक हम साइज ऑफ एरे को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम स्टोर ही नहीं करा पाएंगे, है ना। तो पहले तो हमें मेमोरी ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा मैं पहले के जैसा ले आता हूँ। लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा ट्री है, ये हमारा ट्री है, इसी को स्टोर करना है। तो अगर मैं देखूं कि इस ट्री को अगर मैं स्टोर करूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने नोट्स आएंगे, तो इसको देख लेंगे मैक्सिमम नोट्स इन अ पाथ कितने, 1 2 3 4 है। तो कितना आ जाएगा 2⁴ - 1 दैट इज 15। ठीक है, तो 15 को अगर मैं जीरो से काउंटिंग करूंगा तो कितना आएगा, जीरो से लेके 40। ओके, अब आपको करना क्या है कि हम चूंकि यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें यूज करने वाले हैं तो इसके हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो ए है, जो नोड्स है, पहला जो नोड है, जो पहला नोड है रूट, वो तो जीरो पे ही जाएगा। ठीक है, और इसके इंडेक्स से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे जाएगा। ओके, तो आप खुद से देखिए कि अगर ये जीरो इंडेक्स पे है तो अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड को लिखूं, सॉरी, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या हो सकता है 2:0। अगर मैं ये लिखूं 2:0 तब भी आ जाएगा बट इससे होगा नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं 2 × I, ओके, +1। तो अब यहाँ पे जो आई है दैट इज द इंडेक्स। ओके, तो आई की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 0 + 1 कितना आ गया 1। ओके, तो जो लेफ्ट चाइल्ड है जीरो का वो कहाँ पे जाएगा 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगर हम राइट चाइल्ड की बात करें तो राइट चाइल्ड में क्या आएगा, तो इसका होता है 2 × I + 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को जीरो के राइट चाइल्ड को स्टोर करना है तो आप खुद देखो कि आई की वैल्यू कितनी है जीरो, तो मतलब 2 × 0 + 2 कितना आएगा 2। ओके, तो जो सी है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। अब सेम उसी के बाद हमें हमें पता करना है कि बी का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे आएगा। तो यहाँ से पता करिए ना कि बी की इंडेक्सिंग कितनी है, तो 1 है, तो इसमें 1 पुट करिए। तो 2 × 1 + 1 कितना आएगा 3। तो डी कहाँ पे चला गया 3 पे।
ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा कि सी का राइट चाइल्ड हमें पता करना है, तो सी की इंडेक्सिंग कितनी है 2, राइट चाइल्ड के लिए क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद ई का लेफ्ट चाइल्ड हमें पता करना है, तो ई के इंडेक्स वैल्यू कितनी है 6, ही 6 है, और 6 को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 1, दैट इज 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और बाकी ये जो सारे हैं, ये जो सारे नोड्स हैं, ये जो सारे स्पेसेस है, ये सारे स्पेसेस हमारे जस्ट वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, तो इसके हिसाब से हम ट्री में स्टोर करते हैं ना। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको इसमें कभी भी किसी भी नोड का ये पता करना हो कि उसका पेरेंट कौन सा है, तो आप इंडेक्स से पता कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को पता करना है कि भाई यहाँ पे जो ई नोड है, बताओ इसका पेरेंट कहाँ पे स्टोर है, तो पेरेंट्स टू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि इसके इंडेक्स को आप 2 से डिवाइड करोगे, तो ई को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, दैट मीन्स कि ई का जो इंडेक्स, ई का जो पेरेंट है वो है डी। यहाँ पे आप देखिए 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, है ना। एक मिनट, 6 को सी आना चाहिए था, 0.056 अगर मैं सी का निकालू, ओके तो 1 होगा इसमें, तो 6/3 -1, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग 1 से लेके चलते हैं ना तो डिवाइड से आता है, ओके, लेकिन हम इंडेक्सिंग 0 से लेके चल रहे हैं, तो इसलिए जब भी हमें पेरेंट्स निकालना होगा इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद -1 कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज योर मेन रूट ऑफ दैट नंबर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ई की वैल्यू 6 है तो 6/2 करेंगे तो आएगा 3, 3 -1 करेंगे तो आएगा 2, तो आपका जो सी है वो ई का चलेगा। सेम उसी के हिसाब से अगर आप डी में चेक करोगे, है ना, तो डी की इंडेक्सिंग कितनी है 3/2, तो 3/2 करोगे तो कितना आएगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, अपर अपर लेंगे तो क्या आएगा 2, 2 -1 इक्वल्स टू 1, तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ पे आ गई। ओके, तो इसके हिसाब से हम आगे तो बढ़ ही सकते हैं, लाइक किसी भी नोड का लेफ्ट और चाइल्ड तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं, बट अगर आपको कभी भी किसी भी नोड का ये पता करना हो कि भाई उसका पेरेंट क्या है, लाइक आपको इस एरे के थ्रू इस हिसाब से आपको ट्रेवर्स करना है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नोड्स में किसी भी नोड पे आप रहोगे तो उसके पेरेंट्स पे आप पहुंच जाओगे, और जिस पेरेंट का कोई नोड नहीं है, जिस पेरेंट का कोई भी पेरेंट नहीं है, दैट इज ओनली वन नोड, दैट इज कॉल्ड रीड। सो यू कैन सी हेयर कि अगर हम इस हिसाब से स्टोर करते हैं किसी भी ट्री को, तो देयर इज ए नंबर ऑफ स्टोरेज की बहुत सारी बर्बादी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इस हिसाब से ट्री बनाता हूँ, मैं ट्री का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा ट्री बना लो, हाँ सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाया जिसके अंदर में डेटा है हमारा सिर्फ एक ही तरफ है, ए बी सी डी, ठीक है, तो कितने नोड है 1 2 3 4 5, 5 नोड का मतलब क्या हो गया 2:5, ओके, -1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 2 2 2, ठीक है ना, 4 8 16 32। आप ये सोचो कि 32 मतलब 31 नोट्स बनेंगे, 31 साइज का एरे आएगा, लेकिन उसमें से स्टोर कितना होगा सिर्फ 5, क्योंकि नोट 5 ही है। सो बहुत सारे हमारे अगर हम एरे यूज करेंगे, दैट मीन्स की वी हैव लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। की आवाज मेरे को सुनाई दे रही है।
तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ मेमोरी इसमें होता है ना। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव करना चाहेंगे, इफिशियंट करना चाहेंगे, तो ट्री रिप्रेजेंटेशन में ये वाला जो फंडा मैंने बताया था आप लोगों को, लिंक लिस्ट, इफ वी यूज लिंक लिस्ट, देन आप देख पाओगे कि उसमें स्पेसेस जो है वो इतने बर्बाद नहीं। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बाइनरी। ओके, तो इस चीज के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नाउ वी डू नॉट रिक्वायर दिस एरे, है ना। तो यही रखते हैं। Okay. तो अब रही लिंक लिस्ट में, सो लिंक लिस्ट में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे को अगर कोई एक नोड की अगर मैं बात करूं, लाइक अगर ए एक नोड है, तो अगर मैं इस नोड की बात करता हूं तो हमें लिंक लिस्ट में क्या करना होता है, नोड पहले बनाना था, तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो स्ट्रक्चर अगर मैं नोड के लिए बना रहा हूँ जो कि एक ट्री का एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो एक वैल्यू स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट डेटा। ओके, अब अगर मान लीजिए कि ये इंट जो है वो कैरेक्टर के फॉर्म में है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कैर कर सकते हो, कैर डेटा, क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही कैरेक्टर होगा। फिर उसके बाद किसी भी नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड है, तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो ए जो है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, और ए जो है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक और डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा जो कि है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए। और फिर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक राइट, तो ये स्टोर करेगा राइट के लिए। ठीक है, सो इन दोनों में हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो अगर हमने इस तरह से बना लिया नोड, देन हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज के लिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि इसको स्टोर कैसे कराएंगे। ओके, so look, if we talk about the root node, so the root node is A here. So first we have to create a root, like in linked list, we have to create a start node. So that's here. We will create a node that is called A. Okay, it has two fields, left and right. Okay, so into left we will put the B, and into the right child we will put the C. Okay. Now the B and C both have the left or right child. Okay, so in which the B have only one child, that is D. So the D will contain, and what about these fields? So if this is leaf node or ये सबसे last node है, so we will put here null value. So the B right does not have, so that's why we will put the null value. Now the C left child is not available, so we will put the null. Okay. Now into the right child we have E data structure. Okay, like E type, and the E have only one value, that is F, left child. So we will put here F. Okay, now all these are null, and here it is also. Okay, so in this case you can see, like we have to create only these nodes. Okay, we do not have to take a large size of array. Okay, but look, this one is also some limitations, like if we talk about the pointers, then pointer also takes some memory. Okay, so that is also much good. Like if you create only the node with three value. Okay,
So in this case, you have to create an array of only 3 elements. Okay, but into the linked list, if you represent this node, this tree, with the help of linked list, in which you have to create 3 nodes, but each node have 3 fields. That means the total, the 9 fields will be created here. Okay, but here you have to create only 3 fields. So in this case, the array is much better than linked list representation, but this one is not always correct. Like if we have to store a complete binary tree, then in that case, we can say the array is much beneficial. But if we have to store not a complete binary tree, in that case, we can suppose a number of nodes where a number of nodes is defined. In that case, the linked list representation is much better than array. Okay, so sometimes you have to also think about like when we have to use the array representation and when we have to use the list representations. Okay, so let's move to the code. We try to store the same list. Okay, we try to move the same binary tree with the help of array as well as with the help of what we can say the link representation. Okay, so I hope समझ में आ रहा होगा सभी को और कोडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, सो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ साथ ही कोड स्टार्ट करिए तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ आ रही है तो वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑल्सो, है ना. तो मैं प्लेटफॉर्म वही यूज कर रहा हूँ. आई विल यूज द डेवसी. ओके, सो डेव सी में ही ये आज का टॉपिक है. सो इसको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ. So I'm going to create a new file here. Okay, and इसको hide कर लेता हूँ. So I'll just save it with the tree array. Okay, so has include package. सो यहाँ पे सबसे पहले हम साइज ले लेते हैं यूजर से. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया इंट साइज या हाइट ले लेते हैं. इंट हाइट. ओके, सो यूजर से इनपुट करा लेते हैं फिर एंटर का, क्योंकि हमें ये पहले ही पता करना पड़ेगा, है ना, कि वो कितना है. तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो और वी विल क्रिएट अ ट्री. ओके, सो द कैरेक्टर ले लेते हैं कैर ट्री ऑफ हाइट. टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं इंट टोटल इंट नोड्स. नोड्स निकाल लेते हैं. नोड्स इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 हाइट -1. तो और उतने ही साइज का फिर ट्री बना लेंगे. सो द ट्री इज देयर नोड्स
तो यहाँ तक देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। कोई एरर होगी तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। Okay, so the power is not defined here. Okay, so now we can put here the coding. तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। मैं इसको शो कर लेता हूँ। So अगर इसमें देखें तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन हाइट में 4 है ना। तो हम 3 एंटर करेंगे, और अगर 3 एंटर करेंगे तो ये इतने साइज का एक एरे बनाना चाहिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे नोड्स को भी प्रिंट कर लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि कितने साइज का एरे बना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ, प्रिंट करके देख लेता हूँ। चलो, प्रिंट साइज परसेंटेज कॉमा आ गया, एंटर द हाइट। तो 4 एंटर करना था, तो 4 में, अच्छा हाइट 4 में थी ना उसकी, हाइट तो इसकी 3 थी, तो हमें 3 एंटर करना है। सो मैंने रन किया, वहाँ पे 3 दिया, तो टोटल 15 साइज का हमारा एरे बन गया। ठीक है, अब जब ये एरे बन गया तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स बताने पड़ेंगे। ओके, तो अगर नंबर ऑफ नोड्स बताने पड़ेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन रखते हैं कि अगर किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड अगर नहीं है तो वहां पे हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लूप चला दूंगा, लाइक फॉर, उतने नोड्स तो हमें लेने ही पड़ेंगे, है ना। या वाइल चला दो, क्यों वाइल चला देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे नोट्स तो बन ही गए ना, और इन नोट्स में मैं सभी में बाय डिफॉल्ट 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उस नोड में कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, अच्छा, और यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का लिया है तो इसको कैर टाइप का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एबीसीडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर एबीसीडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे 0 लेना, चलो देख लेंगे, अगर कुछ वैसा होगा तो चेंजेस कर देंगे कोडिंग में। सो वाइल ट्वाइस ले लेते हैं यहाँ पे, ट्वाइस सीएच ले लेते हैं, चलो कैर ले लिया, कैर सीएच इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वाइल में आया, यहाँ पे यूजर को कहा एंटर, स्कैनर परसेंट कॉमा 10%। सो हमें यहाँ पे एक लेना क्रिएट करना पड़ेगा, कैर, तो नोड एंटर किया। ना अब क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे फिर से पूछ लेते हैं कि printf प्रेस y टू कंटिन्यू। ठीक है, और इसको स्टोर करना है चूंकि हमें एक ही वैल्यू में, तो इसलिए मैं यहाँ पे गेट सी एच यूज कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया वाई सी एच इक्वल टू वाई, और सी एच इक्वल टू स्मॉल। ठीक है, तो वाई का मतलब होगा कि उसको फिर से एंटर करना है। ठीक है, अब वो नोट्स कहीं पे भी एंटर करे, हम मान के चलेंगे कि जो हमारा पहला नोड है वो हमारा लेफ्ट होगा, दूसरा नोड जो है वो लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं ये वाला ट्री स्टोर करना चाहूँ, अगर मैं ये वाला ट्री स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहला जो हम लोग वैल्यू देंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा लेफ्ट, मतलब रूट नोड। ओके, देन उसके बाद जो देंगे तो वो पूछेगा, है ना, कि किस नोड का आपको लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करना है, किस नोड का आपको राइट चाइल्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए
अगर मैं इसको नंबर वाइज कन्वर्ट कर दूंगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जानबूझ के अगर हम इस वाले में टेक्निकल स्किल्स में अगर हम कॉम्प्लिकेशंस करेंगे तो मेन जो समझने का जो कंसेप्ट है वो उसमें फिर आप मूव कर जाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे ना सीधा इंटीजर ले रहा हूँ। ओके, तो हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 से। ठीक है, या फिर चलो देखते हैं पहले तो क्या है, क्योंकि मेन हमें ये पता करना है कि अगर हम यूजर से पूछ रहे हैं कि बताओ कौन से नोड का लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करना है, मतलब एक तो सबसे पहले पूछा कि नोड इंसर्ट करो, फिर उसके बाद पूछेंगे कि उस नोड का लेफ्ट करना है या राइट करना है। ठीक है ना, यही तो होगा। तो यहाँ पे पूछेंगे printf 1, 1 का मतलब लेफ्ट, कॉमा 2 का मतलब राइट। ठीक है, तो सबसे पहले नोड लिया कि जिसको इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ले लिया स्कैनफ, यहाँ पे प्रिंट कर दिया printf एंटर रूट नोड, रूट नोड या इसको पेरेंट कर सकते हैं, पेरेंट, इंटर पेरेंट नोड ये ले लिया। जब इंटर पेरेंट नोड ले लिया तो यहाँ पे भी हमें एक और बनाना पड़ेगा %c, कॉमा m% पेरेंट। तो यहाँ पे ले लिया कैर, ठीक, कैर पे ले लिया ना। अब अगर ये कैर पे ले लिया है तो यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया, फिर उसके बाद पूछेंगे कि बताओ इसका लेफ्ट करना है या राइट करना है। ठीक, तो स्कैन %d, कॉमा m% चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड कि कौन सा चाइल्ड वो ये होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डेटा टाइप बना लेता हूँ मैं, चाइल्ड, चाइल्ड ले ली। ठीक है, सो जब भी इसको रन करेंगे, और रूट नोड जो है वो हम शुरू में ही ले लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक नोड हम मान के चल रहे हैं कि एक नोड हमारा रहेगा, वहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कर लिया कंट्रोल भी एंड स्कैनर में उसको कहाँ पे डालेंगे, तो को बाय डिफॉल्ट डालेंगे p के 0। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपल इसको रन करके देखना चाह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ मतलब वैसे कुछ एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे ओके, सो गेट सी एच इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे सेमीकोलन छुटा हुआ है। गेट सी एच के लिए हम लोग यूज करेंगे कोनियो, कोनियो बात। तो सबसे पहले हाइट, तो हाइट हमने दे दिया 3, रूट नोड, रूट नोड पे भी। ओके, तो ए जो है वो स्टोर हो जाएगा अपना कहाँ पे, सो ए स्टोर हो जाएगा अपना। अब देखो इसमें एक और गड़बड़ आ रही है फ्लश की, एक फ्लश की, क्योंकि बफर में यहाँ पे %c के साथ में, लेकिन वो कौन सा इंसर्ट करना है तो वो पूछा नहीं। तो ये क्यों नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बफर का गड़बड़ है ना। तो उसको काम करने के लिए क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर गेट सी एच ही यूज कर लेंगे। आई से देख लिया रूट वो हो गया। of 0. Okay, so enter the height, height enter कर दिया 3, रूट नोड ए। ठीक है, जैसे रूट नोड दिया अब वो आगे बढ़ गया। अब आगे में आ रहा है एंकर नोड
देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप एफ फ्लश यूज कर लो, या अगर हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेना है तो हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो नहीं चलेगा ये, तो हम गेट सी एच ई के थ्रू वर्क करा लेंगे, क्योंकि बफर की ये प्रॉब्लम्स आपको सी में आएगी, अगर आप लिंक लिस्ट यूज करोगे उसमें भी समटाइम्स आती है। तो रूट नोड है ए, फिर इंटर नोड पूछा, नया नोड E, फिर पेरेंट नोड पूछा ए। ओके, अब ये पूछ रहा है कि लेफ्ट या राइट, तो वन। ओके, नो प्रेस करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक तो काम सही कर रहा है हमारा ये। न्यू लाइन डाल दो। इंटर नोड बी, राइट नोड ए, लेफ्ट या राइट करना है। ठीक है, फिर राइट या इंटर नोड, मान लीजिए सी, पेरेंट नोड ए, लेफ्ट और राइट, तो राइट। और अब यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम सही हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने उसको ना एरे में स्टोर नहीं करा है। तो एरे में स्टोर करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जिसको वो ढूंढना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मैं कर दूं एंटर न्यू नोड, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि नया नोड एंटर करना है, फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसको पेरेंट नोड एंटर करना है, फिर यहाँ पे कि अगर वो पेरेंट है ना, अगर वो पेरेंट है तभी तो वो ढूंढेगा कि उसके लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है। दैट मींस कि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि जो पेरेंट यूजर ने एंटर किया है वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है या। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि लाइक एक लूप पे चला लेता हूँ, और आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन नोड्स तक, और आई प्लस प्लस, और जहाँ पे ये मिलेगा उसके पेरेंट की वैल्यू हम लोग सेट करके उसके लेफ्ट और राइट में जो भी आएगा वहां पे फॉर्मूला बैठा के उसको स्टोर कर देंगे। और अगर वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम ये भी बता सकते हैं कि द नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, द चाइल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप उसको सर्च करना है, पी को सर्च करना है उस एरे में। सो इफ पी इक्वल टू डी ऑफ आई, देन यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स इक्वल्स टू आई, और इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जितने बार भी इसके अंदर में आएगा इंडेक्स की वैल्यू कर देगा। ठीक है, तो इस लूप के बाद में हम चेक कर लेंगे इफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, तभी वो यूजर से पूछेगा कि भैया आपको लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा। तो जब लेफ्ट और राइट में इंसर्ट कर दिया कि मेरे को लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है, तो इफ चाइल्ड इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब इक्वल्स टू 1, मतलब वो लेफ्ट में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे कि अगर लेफ्ट में चाइल्ड ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको ये यूजर को बताना पड़ेगा ना कि लेफ्ट में ऑलरेडी चाइल्ड है, यू डू नॉट हैव टू स्टोर देम। ओके, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं कर सकता है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में ले जाओगे। अगर रिप्लेस करोगे तो क्या होगा कि बारी बारी से रिप्लेस करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे कौन सा नोड स्टोर हो रहा है। तो इसलिए मैंने चेक किया कि अगर चाइल्ड की वैल्यू 1 है दैट मीन्स कि वो लेफ्ट में जाना चाह रहे हैं, और लेफ्ट में जाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाल लिया कि इंट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। तो हमने फॉर्मूला बनाया था कि इंडेक्स इंटू 2 + 1, दिस वन इज द
लेफ्ट चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे चेक कर लिया, इफ ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, हमने सब में 0 इंसर्ट किया, नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस यहाँ पे आपको शो करना है प्रिंटेड द लोकेशन इज नॉट एम्प्टी। आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी नोड इंसर्टेड, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ तो वहां पे स्टोर कर दो। स्टोर क्या कर दो कि ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड बस 2, जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट करने के लिए किस में स्टोर किया हमने, नोड में, तो यहाँ पे कर देगा नोड। ओके, और अगर ये नहीं हुआ तो एल्स, एल्स में हम मान के चलेंगे कि वो राइट चाइल्ड में है, या फिर आप एल्स इफ लगा दो, एल्स इफ लगा दो, एल्स इफ में चाइल्ड इक्वल्स टू 2। ओके, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेम वही, कि अब यहाँ पे राइट चाइल्ड के लिए निकालेगा, सो दैट इज इंडेक्स इंटू 2 प्लस 2। फिर से सेम यही कंसेप्ट, मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए राइट चाइल्ड, कि अगर राइट चाइल्ड नॉट इक्वल टू 0 है तो बता दो द लोकेशन इज नॉट एम्प्टी, अदरवाइज राइट चाइल्ड में नोड को इंसर्ट कर दो। ठीक, यहाँ पे वी कैन ऑल्सो पुट अ मैसेज प्रिंटेड node inserted right of percent c comma p of, इससे ये पता चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये भी दे दो परसेंट सी। ओके, सो द सेम लॉजिक ये वाला भी मैं यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ ताकि यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट तो रहेगा ही सेम, ये सिर्फ राइट के बदले में लेफ्ट। ओके, सो नाउ ये तो हो गया, लेकिन हमें बार बार ना एरे को प्रिंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरे को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ शो, कि वो बार बार बताता रहे कि एरे के अंदर में कंटेंट क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक साइज ले लिया एरे का के नाम से। इसको प्रिंट कर देता हूँ, फॉर i equals to 0 से I less than size I plus plus, and we can print send the percent C percent C comma tree। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, तो वो स्पेस आता रहेगा बीच में, तो ये सिर्फ ट्री को दिखाता रहेगा। ओके, तो जब भी इंसर्ट होगा यहाँ पे ये ट्रीज को शो कर देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ वाई टू कंटिन्यू, इसके अंदर आ गया। यहाँ पे शो कर देते हैं, तो मैं पास कर देता हूँ मैं ट्री कॉमा। ओके, सो दिस कोड है, ये कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो ताकि आप लोग इसको देख पाओ, ठीक है, और जो जिनकी जो एनालिसिस है वो उसको भी कर लीजिए। ठीक है, आई जस्ट शेयर द कोड विद यू।
आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप कोड समझो, क्योंकि कोड समझना ज्यादा जरूरी है। और इस वाले में मैंने दोनों में सेंड कर दिया है, शेयर्स कर दिया है कोड। आप इसको ओपन कीजिए, रन करा के देखिए, ठीक है। और हमें इस टाइप का ट्री इसमें इंक्लूड करना है, ये वाला ट्री इंक्लूड करना है, ठीक है। ये वाला ट्री इंक्लूड करना है, तो आप इस ट्री को स्टोर करके देखिए बारी बारी से, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, दिन में फिर से कंटिन्यू करूंगा इसको।
Participants, due to some technical issue, there is some delay in the session. So please wait patiently. ओके, सो कोड शेयर हो गया था आप लोगों के साथ में, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं। हमें हमें यही स्टोर करना है, तो इसको स्टोर करने के लिए देख लेते हैं हमारे पास डायग्राम क्या है ना। तो इसको मैं रन करके, अच्छा एक इसमें ना एक और थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे नोड नहीं मिला है तब तो ये आया, लेकिन अगर इसके एल्स में मैं लिख देता हूँ कि printf परसेंट सी parent not found, ओके, या नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर इंसर्शन नहीं हो पाएगा। मतलब आप किसी नोड के लेफ्ट या राइट चाइल्ड को बनाना चाह रहे हो, लेकिन वो पेरेंट नोड है ही नहीं, है ना, तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। सिंपल का और क्या गड़बड़ है यहाँ पे भी सेमीकोलन का।
शो ट्री और नोड्स, तो हमें एक ट्री पास करना है और साइज देना है। नोड्स का डेटा टाइप क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट कैब टू इंच। अच्छा, ट्री का डेटा स्ट्रक्चर जो है ये है कैब। तो यहाँ पे कैर कर देंगे। ये आपका सर्टिफिकेट टॉपिक सही है, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं, इनको चलवाने इनका जा रहा है तो बागवान एक ही सर्टिफिकेट में सारा लिखवा दीजिए, चार चार सर्टिफिकेट देने का क्या लॉजिक है। सो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, और इस तरह से हमें हमें ये वाला ट्री स्टोर करना है ना, ये ट्री स्टोर करना है। तो मैं इसको remove कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट है इसकी हमारी 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटर किया। रूट नोड अपना ए है, तो ए एंटर कर दिया। अब नया नोड इंसर्ट करना है, तो न्यू नोड इंसर्ट क्या करना है, बी। मैंने बी इंसर्ट कर दिया। फिर पूछा कि बताओ बी का पेरेंट कौन रहेगा, तो मैंने कहा ए रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट इंसर्ट करना है या राइट, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ए के लेफ्ट में बी इंसर्ट है ना, तो मैंने 1 प्रेस करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो नाउ देखिए ट्री यहाँ पे आ गया कि ए और बी है ना, बन गया। फिर उसके बाद पूछा और इंसर्ट करना है, जी हाँ, यस। फिर आया एंटर न्यू नोड, नए नोड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो क्या है, नया नोड सी है। पेरेंट बताओ ए है, कहाँ इंसर्ट करना है, राइट में, तो 2 इंसर्ट कर दिया। तो राइट में इंसर्ट हो, तो ये 0 1 2 आ गया। नेक्स्ट मैंने वाई प्रेस किया, आया एंटर करो न्यू नोड। अब सपोज करो मैंने प्रेस कर दिया डी। ओके, तो मेरे को डी इंसर्ट करना था, डी का पेरेंट कौन है, तो बी। कहाँ इंसर्ट करना है डी को, लेफ्ट में, तो लेफ्ट इंसर्ट कर दिया, तो एबीसीडी आ गया। फिर वाई प्रेस किया। अब इस बार आया क्या कि नया नोड इंसर्ट करना है ई को। ओके, तो ई इंसर्ट कर दिया। पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड हमारा क्या है, तो पेरेंट नोड हमारा सी है, तो सी में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कहाँ पे करना है, ई को, राइट में, तो राइट इंसर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ गया। ओके, दो ब्लैंक आ गए, एक बी का राइट चाइल्ड नहीं है, सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, यस। फिर मैंने पूछा एंटर न्यू नोड, तो यस एफ इंसर्ट करना है। पेरेंट कौन है, ई, और लेफ्ट में या राइट में, तो लेफ्ट में, तो इंसर्ट हो गया। ठीक है, सो ये जो ब्लैंक्स आ रहे हैं ना, दीज ऑल आर आवर वेस्टेज ऑफ स्पेसेस। ओके, और इसमें अगर अब मैं जाके सी के लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहूँ, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। मैं इंसर्ट करके देखता हूँ, मैंने वाई प्रेस किया। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा एंटर न्यू नोड, तो यस मेरे को जी इंसर्ट करना है। ओके, जी इंसर्ट करना है, और पेरेंट क्या होगा उसका, तो सी। सी के कहा, लेफ्ट में। अब अगर सपोज करो यहाँ पे मैं राइट में प्रेस कर रहा हूँ, तो वो अपने आप बता देगा द लोकेशन इज नॉट एम्प्टी। ओके, दैट मीन्स कि ये भी अपना काम कर रहा है। फिर से कंटिन्यू करता हूँ मैं, एंटर न्यू नोड, तो न्यू नोड में दे दिया मेरे को जी इंसर्ट करना है। पेरेंट नोड सी होगा, कहाँ पे इंसर्ट करना है, लेफ्ट में, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया, तो देखिए लेफ्ट में इंसर्ट। ना अब कोई ऐसा नोड लेते हैं जो ऑलरेडी मतलब उसके अंदर है ही नहीं। ओके, तो सपोज करो मैंने वाई प्रेस किया, कंटिन्यू करना है, न्यू नोड इंसर्ट करना है। मेरे को इंसर्ट करना है, मान लीजिए के। ओके, और के जो इंसर्ट करना है वो मेरे को इंसर्ट करना है एच के लेफ्ट और राइट में, तो एच नोड्स तो है नहीं, मैंने यहाँ पे एच प्रेस किया, तो उसने बता दिया कि पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। एच, एच पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे मेरे कोड में देखना पड़ेगा। आई थिंक %d के साथ प्रिंट किया होगा, इसलिए वो आ रहा है, तो %c होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप स्टोर करोगे, है ना, अगर किसी भी ट्री को स्टोर करना है तो। सो दिस कोड इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री यूजिंग एरे। ओके, आप एरे के थ्रू इसको अपना कर सकते हो। नाउ अब अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, सो लिंक लिस्ट में भी हमें सेम इसी टाइप का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब लिंक लिस्ट वाला भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसको प्रिंट कैसे करना है। देखा यहाँ पे। इसलिए वो गड़बड़ा रहा था।
ठीक है। सो ये फाइनल कोड में जो आज अभी का जो है, अभी तक का जो लेटेस्ट कोड है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। चैट विंडो मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ। दिस वन इज द completed code to store any binary tree with the help of L. Okay. So now अब इसी वाले में मैं एक और नया फाइल स्टार्ट करता हूँ, एंड दैट वी विल इन विच वी विल यूज द लिंक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ ट्री लिस्ट। लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। तो अब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, है ना। नोड बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो नोड बनाने के लिए हमें एक तो, चूंकि इस वाले में डेटा यूज कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप का, तो डेटा ले लिया। बाकी एक लेफ्ट होगा, एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, और स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक राइट चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। I'll include the header file. ठीक है, ओके। सो नाउ अब पहले एक छोटा सा ना प्रोटोटाइप बना लेते हैं कि किस हिसाब से हमें स्टोरिंग करनी है। लाइक जैसे हम लोगों ने एरे में पूछा, मांगा कि बताओ लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है, उसके हिसाब से करना है। या यहाँ पे हम कोई लॉजिक दे कि जैसे ही एक ए नोड इंसर्ट किया, वहां पे पूछ ले कि बताओ इसका लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, राइट चाइल्ड क्या होगा। जब वो इंसर्ट कर दिया, फिर पूछा कि बताओ इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, राइट चाइल्ड क्या होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम करते चले गए। जहाँ पे हमें इंसर्ट नहीं करना है, वहां पे हम नल पुट कर देंगे या नल एंटर कर देंगे। ओके, तो उसी के हिसाब से हम वी ट्राई टू यूज द सेम बाइनरी ट्री। ओके, द सेम बाइनरी ट्री वी विल यूज हियर। ओके, तो सेम बाइनरी ट्री के लिए हमें एक रूट बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम रूट क्या किसको यूज कर रहे हैं, हम रूट यूज करते हैं। मैं एक रूट बना लेता हूँ, नोड एस्ट्रिक, और बाय डिफॉल्ट रूट को नल कर देते हैं। ठीक, तो अगर मैं वैसे ही चलूँ कि मैंने पूछा सबसे पहले यूजर से कि प्रिंटफ एंटर करो, ओके, तो यूजर ने इनपुट दिया। ओके, यहाँ पे ले लिया हमने, तो जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करेंगे रूट के डेटा में, इक्वल्स टू गेट सी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर हमें लेना है। ओके, तो हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि रूट का डेटा गेट सी एच, और फिर रूट का लेफ्ट इक्वल्स टू नल, और रूट का राइट इक्वल्स टू, ठीक है। तो रूट का लेफ्ट और राइट नल हो जाएगा अपना, है ना। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक नोड आ गया, जो भी एबीसीडी है, जो भी नोड है वो आ गया हमारे पास। ओके, नाउ जब ये फर्स्ट नोड आया, देन उसके बाद हमें अब पूछना पड़ेगा कि भैया आपको किस में इंसर्ट करना है, लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है। ओके, तो इसके हिसाब से अब सोचिए कि आपने अगर एक नोड बना लिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, इस वाले फिगर को ना मैं इस तरफ बना देता हूँ। ये बी है हमारा, ये बी है, सी है, ये डी है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस तरफ से। इसकी भी अब जरूरत नहीं है, हम लोगों ने लिस्ट का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, और आई विल ऑल्सो शेयर द सेम कोड, ताकि अब आप लोग अपना भी लॉजिक लगा सको, है ना। तो कंट्रोल सी करके मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप पे, कंट्रोल
सुनाओ, द कोड आप लोगों के पास भी पहुंच गया है। ठीक है, अब आप लोग खुद से जरा सोच के ये बताइए कि हमारा ए तो स्टोर हो गया। अब अगर हम फ्लो वाइज चलेंगे तो हम क्या पूछेंगे कि ए का लेफ्ट बताइए, तो लेफ्ट में आ गया बी। फिर पूछेगा ए का राइट बताइए, तो राइट में आ गया सी। देन उसके बाद हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। वहां से हमें फिर बी पे ही जाना पड़ेगा। बताओ बी का लेफ्ट बताओ, डी का राइट बताओ, सी का लेफ्ट बताओ, सी का राइट बताओ, डी का लेफ्ट बताओ, डी का राइट बताओ। अगर हम उस वे से चलेंगे तो फिर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जहाँ पे ब्लैंक है, ये देखिए कि जहाँ पे ये ब्लैंक आ रही है, से ये ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक है। ओके, फिर उसके बाद ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। तो इतनी बार, और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे कुछ आएगा तो उसका लेफ्ट भी ब्लैंक है, राइट भी ब्लैंक है, इस वाले का लेफ्ट भी ब्लैंक है, राइट ब्लैंक है। तब इसकी बारी है। तो आपका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो कितनी बार है, पहले आप इस पे फंस रहे थे, फिर इस पे आ रहे हो, फिर इसके बाद यहाँ पे होगी, फिर इसके बाद यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे आगे, तो इतने बार आपको नंबर पुट करना पड़ेगा। तो जितने बार आपको नंबर पुट करना पड़ेगा, that means कितने times मतलब टाइम ही हो गया, अननेसेसरी है। हम सीधा ये पूछे कि एंटर करो की, ठीक है, एक की नोट बनाओ। अब ये तुम्हें कितने नंबर राइट करना है, जैसे एंटर कर रहे हैं, तो वो उस नोट में, और उस नोट को ढूंढने ओके। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हम ढूंढेंगे कैसे, है ना। देखो, एरे में अगर हमें सर्च करना है, हमें लिनियर करना है, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एरे में हम लिनियर वाइज हाँ वन लेकिन अगर हमें डिस्कस करना है तो आप एक जाओगे, फिर लिनियर का बी पे जाओगे, फिर डी पे जाओगे, यहाँ पे नहीं मिला फिर वापस आओगे, फिर बी पे जाओगे, फिर इधर वापस आओगे, फिर सी पे जाओगे, सी के एंड में जाओगे, यहाँ पे नहीं मिला। दैट मींस कि जब तक आप पूरे ट्री को ट्रैवर्स नहीं करोगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जिस नोड पे आपको इंसर्ट करना है दैट नोड इज अवेलेबल और नॉट। अगर वो नोड अवेलेबल नहीं है तो इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, और अगर वो नोड अवेलेबल है तभी इंसर्शन हो सकता है। ओके, so are you getting or not? We have to traverse the complete tree to identify whether a node is available or not. And whenever you find that node, then you have to option either into depth or into until unless अगर हम कुछ ऐसा करें कि जैसे हमें ये यही ट्री स्टोर करना था, तो हम यहाँ कैसे स्टोर करेंगे कि लेफ्ट में आप जो रूट है, ओके, रूट के लेफ्ट में हम ऐसे स्टोर कर देंगे रिक्वेस्ट टू यू नोड, एक नया नोड बना है यहाँ पे, एक नया नोड बना लेता हूँ मैं इसको राइट stop node strict size of stop is first. So we will put here allow for और की गेट ये भी यूज कर रहे हैं, तो ऐसे तो अब इन दोनों के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे नोड बना लिया तो फिर उसके बाद नोड में डेटा डालेंगे, नोड डॉट डेटा वस्तु मैं स्टोर करूंगा मान लो ई, ठीक है। मतलब दिस वन इज कंप्लीट मेमोरी, इसमें सारा का सारा कुछ लिखना है। तो यहाँ पे अब ये जो नोड बना, ओके, उसके हम लेफ्ट में जाएंगे, है ना, या फिर इतने सारे नए नोड बना लें, सब नोड का नाम अलग अलग रखें, जैसे कुछ हिसाब से मैं अब कुछ नया चीज करके देखता हूँ, देखते हैं कितना
ठीक, ये फंक्शन मैंने बताया। ओके, जो कि क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा। तो string and first to this in arrow data first to अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं सबसे नोट क्रिएट करता हूँ और उसके साथ यहाँ पे एन और equals to null in n of value equals to this one is one of the type that we can store tree into this, ठीक है। तो what I did here, मैं सबसे पहले सभी को मैं कमेंट करूँगा, delete कर दूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि नोड बना लिए, सारे नोड बना लिए, जितने को स्टोर करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ कर लिया create, पास कर दिया एक, और इसमें स्टोर कर दिया। तो जितने भी नोट्स हैं उन सभी को मैं स्टोर कर दूँ। So मिल जाएगा अपना B, मिल जाएगा C, एक्सक्यूज मी सर। सर जी मैम। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ जी। ओके, सो अब आ रही सही से आवाज? हाँ जी सर, अब सही है ना। तो फर्स्ट मैंने क्या किया कि बिल्कुल मैं मैन्युअली से मैन्युअली पे जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब हम लोग ट्रेवर्सल देखेंगे तो उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे बताओ किसका लेफ्ट या किसका राइट इंसर्ट करें, सो वी विल डू दैट। बट बिफोर दैट ये एक सबसे आसान तरीका है कि आपको जितने नोड्स हैं उन सभी नोड्स को आपने बना लिया है, और जैसे ही आपने यहाँ पे नोड बनाया ना, हर नोड में ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। तो हर नोड का लेफ्ट और राइट जो है वो बाय डिफॉल्ट नल है, डेटा में जो हमने यहाँ से पास किया उसको उसने स्टोर कर दिया है। क्या है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया कि ए के लेफ्ट में इसको डाल दो तो बी को डाल दो, ए के राइट में सी को डाल दो, देन उसके बाद बी के लेफ्ट में डी को डाल दो, और सी के राइट में ई को डाल दो, और ई के लेफ्ट में एफ को डाल दो, ठीक है। बस, तो इसके हिसाब से भी चल सकते हैं, बट आप इसको ना शो नहीं करा पाओगे। लाइक शो कैसे करेंगे, क्योंकि एरे को शो कराना वेरी इजी, बट अगर हम यहाँ पे इसको शो कराएंगे क्या करेंगे, डेटा struct node asterisk n goes to log.html. ओके, सो यहाँ पे एरर क्या है,
cannot convert node asterisk to create node char. तो यहाँ पे हमने कैर डेटा टाइप बना लिया है। यहाँ पे कैर डेटा टाइप बनाया, लेफ्ट राइट क्रिएट किया, यहाँ पे रूट बनाया। रूट की अब जरूरत है नहीं, वैसे इसको हटा दे रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद ये नोड है, क्रिएट नोड, कैर डेटा लिया इसमें। तो कैर डेटा लिया, इन ऑफ डेटा। फंक्शन स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक क्रिएट नोड कैर फिल, सही है। स्ट्रक्चर का यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी ये एन कैपिटल है। ओके, सो दैट मीन्स कि ये तो ट्री बन गया है ना, लेकिन अगर ये ट्री बना है तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे? ओके, जैसे हमारे पास ट्री है, अब ट्री हमारे पास आ गया। ओके, तो अगर मैं अभी देखूं तो हमारे पास जो ट्री आया है वो क्या है, इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने ए बनाया। ओके, फिर ए के लेफ्ट में बी को इंसर्ट कर दिया, फिर ए के राइट में सी को इंसर्ट कर दिया, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो बी के लेफ्ट में डी को इंसर्ट कर दिया, बी के लेफ्ट में अपना डी आ गया, एंड सी के राइट में ई आ गया, तो सी के राइट में ई आ गया। नाउ ई के लेफ्ट में एफ आ गया, तो ई के लेफ्ट में एफ। ये ट्री बना इसके बेसिस पे। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि हम एरे को तो बहुत ही आसानी से प्रिंट कर पा रहे थे, लेकिन इस ट्री को कैसे प्रिंट कराओ? क्योंकि ये तो लीनियर है ही नहीं ना। अगर लीनियर है, लाइक इंडेक्सिंग होता 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होता, तब तो हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो इसको किसी भी ट्री को ना ट्रेवर्स करने के लिए, अगर आपने लिंक रिप्रेजेंटेशन किया है तो ट्री को ट्रेवर्स करने का बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं। ओके, द 3 टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ पे वही अब डिस्कस करूंगा कि ट्रेवर्स टेक्निक। सो पहला होता है हमारा प्री ऑर्डर, दूसरा होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर, तीसरा हम कह सकते हैं इसको इन ऑर्डर, और हर जगह एक और ऑर्डर यूज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड लेबल ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसकी जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि द ट्री इज नॉट अ लीनियर। अगर आप इसको एरे में स्टोर करोगे तब तो आप उसको सिक्वेंसली 0 1 2 3 कर सकते हो, लेकिन अगर ये ट्री बना हुआ है तो आप शुरू तो रूट से ही करोगे ना। अगर शुरू रूट से करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे। तो अगर आप पहले लेफ्ट में गए तो यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इसका पहले लेफ्ट चाइल्ड यूज करोगे या राइट चाइल्ड यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है कि इस ट्री को प्रिंट करना है, या जो डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है, जिसको हमने इनपुट लिया है या इनपुट करवाया है यूजर से, वो जो यहाँ पे स्टोर हुआ है उसको अब प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का क्या ऑप्शन हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि लेवल बाय लेवल चले, कि पहले ए को प्रिंट किया, फिर उसके बाद बी और हम तो इस तरह चलेंगे कि हम आएंगे, लाइक हम पहले ए पे आए, फिर उसके बाद बी पे आए, फिर उसके बाद डी पे आए, फिर उसके बाद वापस जाएंगे, फिर उसके बाद सी पे जाएंगे, फिर डी में कुछ है नहीं तो इधर छोड़ दिया, फिर ई पे जाएंगे, फिर एफ पे जाएंगे। तो किसी ने कहा कि हम तो ऐसे प्रिंट, लाइक हमारा जो प्रिंट कर होगा वो क्या होगा, ए बी डी,
फिर उसके बाद सी, ई और L, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम प्रिंट करेंगे। फिर किसी और एक और ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर आपकी पीपीटी शो नहीं हो रही है। पीपीटी, पीपीटी तो मैं शो ही नहीं कर रहा हूँ मैडम। ओके, मैं स्क्रीन एक बार फिर से शो करके देखता हूँ। हाँ जी, मीन्स स्क्रीन शो नहीं। ठीक है, अब आ रही मैडम? सर अभी तो नहीं है। हाँ, नाउ इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। सो मतलब जैसे रिसर्चर होते हैं ना, तो हर किस चीज का वो नया नया तरीका देते हैं। तो किसी ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई ट्री है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही थी, सो इसलिए कि सपोज करो कि कोई एक ट्री है ना। तो एक बंदे ने क्या कहा कि भाई हम तो ट्री इस जैसे प्रिंट करने का मतलब क्या है, प्रिंट करने का ये मतलब होना कि इसके सारे नोट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, और सारे नोड विजिट भी हो जाए। तो किसी ने कहा कि हम तो लेवल बाय लेवल चलेंगे, कि पहले रूट पे, फिर उसके नीचे वाले पे, फिर उसके नीचे वाले पे, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो एक ने कहा कि उसके हिसाब से ये आउटपुट आएगा ए बी सी डी, ठीक है। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि जरूरी थोड़े है ये करना, मैं तो अपना अलग तरीका निकालूंगा। उसने क्या कहा कि मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड को यूज करूंगा, फिर उसके बाद राइट चाइल्ड को यूज करूंगा। मतलब लेफ्ट 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 जाते रहो जब तक कि राइट नहीं मिले। लेफ्ट नल हो गया, फिर राइट को जाते रहो। तो उसके हिसाब से किया, तो उसके हिसाब से प्रिंट क्या हो जाएगा, ए बी डी। तो लेफ्ट पूरा खत्म। अब राइट पे आएंगे तो राइट में क्या है, पहले सी है, तो सी का लेफ्ट है नहीं, तो राइट पे जाएंगे। राइट पे आया ई, ई का लेफ्ट एफ है, तो एफ आ गया। तो एक ने कहा कि हम तो ये वाला फंडा बनाएंगे, तो एक ये टेक्निक आ गई, निकाला, एक ये टेक्निक आ गई। फिर किसी ने कहा कि जरूरी क्या है लेफ्ट को, मैं तो पहले राइट पे जाऊंगा, ओके, या मैं पहले लेफ्ट पे जाऊंगा फिर राइट पे जाऊंगा फिर रूट पे आऊंगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। एक ने कहा कि ठीक है, मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड करूंगा, मैं रूट पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड को, फिर रूट को, फिर राइट चाइल्ड को प्रिंट करूंगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द इन ऑर्डर। ओके, तो प्री ऑर्डर का क्या कंसेप्ट था, तो ये जो चार चीजें जो हुई हैं, और भी टेक्निक्स हैं, बट ये चार जो है वो मोस्ट कॉमन है कि किसी भी ट्री को आप कैसे प्रिंट करोगे। तो प्री ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले विजिट करते हैं रूट को, जिसका हम नाम लेते हैं नोड। ओके, मैं यहाँ पे इसको नोड कर देता हूँ। इसका मतलब होता है नोड, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में होगा पहले आपका लेफ्ट, राइट, और फिर नोड। मतलब किसी भी आप नोड पे हो तो उसका पहले लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट होगा, फिर राइट चाइल्ड प्रिंट होगा, तब मेन रूट की बारी आएगी। इन ऑर्डर में होता है लेफ्ट, फिर उसके बाद नोड, और फिर उसके बाद, ठीक है। और लेवल ऑर्डर का तो मतलब ही है कि आपको लेवल बाय लेवल एक्सेस करना है हर लेवल पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें अब टेक्निक क्या बनानी पड़ेगी कि भैया ट्री तो बन गया, लेकिन अब इस ट्री को प्रिंट कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर इसी ट्री को मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करने की कोडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ट्री तो हमारा बन गया, जो हमने मैन्युअली बनाया, ये ट्री तो बन गया। तो इसको अगर मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइट, और मान लीजिए मैं प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, प्री ऑर्डर। तो हमें चाहिए क्या, हमें रूट चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे लिया स्ट्रक्ट और स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर रूट नल है, ठीक है, रूट इक्वल टू नल, या मैं कहूँ कि रूट नॉट इक्वल टू नल है, तभी ये चलेगा। ओके, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्री ऑर्डर में क्या था कंसेप्ट, कि सबसे पहले आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट किसको करना है, नोड को।
तो हमने यहाँ पे कर दिया printf %d स्पेस कॉमा रूट ऑफ डेटा सी होगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको प्रिंट कर दिया तो अब हमें कहाँ पे जाना है, लेफ्ट पे। तो जब लेफ्ट पे जाओगे तो वो भी तो एक तरह का रूट ही रहेगा, रूट ही रहेगा, नोड रहेगा। तो हम लोग इस कॉल कर देंगे प्री ऑर्डर को, और यहाँ पे फिर इसके लिए पास कर देंगे कि भैया अब आप रूट के लेफ्ट में चले जाओ, ठीक है। जब रूट का लेफ्ट में जाएंगे तो फिर से वो कॉल होगा, फिर से कॉल होगा, फिर से चेक करेगा कि अगर नहीं है तो फिर से आ जाओ। जब ये पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद आ जाओ के राइट में, ठीक है। और इसको आप कॉल कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको अगर शो करता हूँ प्री ऑर्डर, और यहाँ से पास कर दिया मैंने ए, क्योंकि ए हमारा रूट नोड है, ओके। तो देखते हैं कि ये फिर क्या प्रिंट करता है। तो देखिए ये प्री ऑर्डर हुआ हमारा ए, देन उसके बाद बी, बी के बाद डी। तो वर्किंग कैसे हो रही है इसको भी मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। इस कोड के हिसाब से हमने ए का पास किया, उसको रेफरेंस ना ए का पास किया। तो अगर ए का पास किया तो ए गया यहाँ पे, चेक किया तो ए के लिए कॉल हुआ, चेक किया क्या ए नल है, तो ए नल नहीं है, है ना। तो प्री में क्या गया ए, ए नल है नहीं, तो नीचे आया प्रिंट किया ए को, तो ए प्रिंट हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या कहा, यहाँ से फिर कॉल कर दो रूट ऑफ लेफ्ट के लिए। तो रूट ए है हमारा, ए का लेफ्ट में क्या है, बी है, तो यहाँ से फिर से कॉल हुआ प्री। जब फिर से प्री बी कॉल हुआ तो ऊपर गया, फिर से चेक किया क्या ये नल है नहीं, तो प्रिंट कर दो बी को, तो बी प्रिंट हो गया, और फिर से प्रिंट कर दो, कॉल कर दो प्री का बी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का लेफ्ट, बी का लेफ्ट क्या है डी, तो डी के लिए कॉल हुआ, फिर ऊपर गया डी से के लिए आया, डी के लिए जब आया तो चेक किया क्या डी नल है नहीं, तो डी को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे डी प्रिंट हुआ है। देखिए पहले ए फिर बी फिर डी प्रिंट हुआ, फिर चेक किया कि डी का लेफ्ट में जो भी है उसको कॉल कर दो, तो प्री ऑफ डी लेफ्ट ये क्या हो गया नल, क्यों, क्योंकि डी के लेफ्ट में नल। जब ये नल हुआ तो ये इस लूप में तो जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं, तो अब जब ये इसमें नहीं जाएगा तो क्या होगा, अब इसके नेक्स्ट वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, है ना। तो अगर ये वाला कॉल होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब रूट का लेफ्ट खत्म हो जाए तो रूट के राइट में जाओ। तो रूट अभी क्या है हमारा, इसके एक स्टेप पहले आ गए डी, तो डी के राइट में देखा तो डी के राइट में भी नल है, तो एक स्टेप और पीछे आ जाओ। एक स्टेप और पीछे आए तो क्या मिला हमें, बी रूट, तो बी के राइट में जाओ तो बी का राइट भी नहीं है। फिर इधर आए, फिर एक स्टेप और पीछे गए तो ए का राइट, अब ए का राइट क्या है सी, तो सी पे आ गया, तो यहाँ से क्या कॉल हो गया प्री ऑफ सी। फिर देखा कि अब प्री ऑफ सी नल है नहीं, तो सी को प्रिंट कर दो, सी को प्रिंट कर दिया, और कहा कि सी के लेफ्ट में जाओ, तो सी के लेफ्ट में तो नल है, फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा। तो जब ये नल वाला खत्म होगा तो फिर किस पे आएगा, राइट पे, तो सी का राइट पे आओ। सी के राइट पे आया तो सी के राइट में क्या है हमारा ई है, ई इज नॉट नल, तो फिर से प्रिंट कर दिया ई को, तो यहाँ पे ई आ गया। फिर नीचे आया तो ई का लेफ्ट में क्या है एफ, तो उसने फिर से कॉल कर दिया कि ई के लेफ्ट में जाओ, जो ये लिखा हुआ है। तो ई के लेफ्ट में गया, ई के लेफ्ट में उसको एफ मिला तो एफ को प्रिंट कर दिया। फिर लेफ्ट में गया तो लेफ्ट में नल है, ऊपर गया नल मिल गया, ओके। तो इसके हिसाब से अगर आपने जो ट्री बनाया, अगर ये ट्री बनाया है तो इस वाले का जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग प्री पे काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये प्री ऑर्डर है, इसी हिसाब से हमारे पास पोस्ट ऑर्डर भी होगा, है ना। तो पोस्ट ऑर्डर को चेक करके देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। पोस्ट ऑर्डर के लिए मैं यहीं पे कोडिंग फिर से लिखता हूँ इसके नीचे, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो प्री ऑर्डर के लिए फिर से वही होगा, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर का क्या कहना था कि पहले आपको जाना है लेफ्ट में, फिर जाना है राइट में, और फिर उसके बाद लास्ट में नोट पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में कर दिया स्ट्रक्ट
नोड एस्ट्रिक रूट। ठीक है, लॉजिक तो वही रहेगा कि तभी चलोगे जब रूट की वैल्यू नॉट नल है, तो रूट नॉट इक्वल टू नल तभी इसके अंदर में जाएगा। और सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, तो भैया सबसे पहले जाएगा ये पोस्ट ऑर्डर में रूट का लेफ्ट। ठीक, जब रूट का लेफ्ट हो गया तो फिर जाएगा पोस्ट ऑर्डर रूट का राइट। ठीक है, जब रूट का राइट हो गया तो जाएगा वो रूट का लेफ्ट भी हो गया, रूट का राइट भी हो गया, तो अब कहाँ पे जाएगा, प्रिंट करेगा। सो प्रिंट कर दिया परसेंट डी स्पेस कॉमा रूट का डेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर। तो अगर पोस्ट ऑर्डर को भी मैं यहाँ पे कॉल करके देखूँ, पोस्ट ऑर्डर ऑफ ए का पोस्ट ऑर्डर बताएगा। यहाँ पे हमने परसेंट भी दे दिया होगा, इसीलिए ये नंबर्स में आ रहे हैं। इसमें परसेंट सी कर देता हूँ। आगे ओके। सो आप देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट 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 में आ गया, अब इसके लेफ्ट में, राइट में तो कुछ है नहीं, तो पहले डी, राइट में गया, राइट में कुछ नहीं है तो बी। तो उसके बाद इस रूट को अगर आप पेरेंट्स मानोगे तो लेफ्ट जब खत्म हुआ तो राइट में जाएगा, तो सी है, सी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में ई तो ई पे गया, ई के लेफ्ट में एफ तो आया एफ, देन ई फिर सी फिर ई। ओके, सो दिस इज आवर पोस्ट ऑर्डर। अगर इसी हिसाब से हम इन ऑर्डर की बात करेंगे तो इन ऑर्डर में भी क्या होगा, वाइट इन ऑर्डर में नोड एस्ट्रिक रूट, रूट ले लिया और यहाँ पे कर लिया इफ रूट नॉट इक्वल टू, कहाँ पे जाना है हमें, हमें पहले जाना है लेफ्ट में। ठीक है, तो इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट में जाओ, फिर उसके बाद प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद उसको राइट में जाओ, ऑर्डर रूट ऑफ राइट। ठीक है, तो ये हमारा रूट का राइट भी हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट पर कॉल करके देखता हूँ, प्रिंट एन इन ऑर्डर। सो ये रहा आपका, ओहो इसमें बिल्डर कर दूंगा परसेंट। तो ये रहा आपका डी, देन बी, फिर इसके राइट में कुछ नहीं है तो बी आया, बी के लेफ्ट में अब कुछ नहीं है तो सी आया। ओके, तो बी ए सी आ गया यहाँ पे, देन उसके बाद एफ आया, ई आया, इसके राइट में कुछ नहीं है। सो ये रहा हमारा, ये रहा हमारा ट्रेवर्सल। ठीक है, सो दिस ट्रेवर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिंट एनी ट्री, है ना। आप इसको प्रिंट तभी कर सकते हो। और अगर आपको ये सेम लॉजिक अप्लाई करना है एरे वाले में तो एरे वाले में भी पॉसिबल है, लेकिन एरे वाले को जब आप प्रिंट करोगे दैट इज कॉल्ड लेबल ऑर्डर। ओके, सो लेबल ऑर्डर के थ्रू हम लोग एरे को प्रिंट करते हैं। ठीक है, और लेबल में ही हम लोग स्टोर भी तो वैसे ही करते थे ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उस हिसाब से स्टोर करते थे नंबरिंग देके। सो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड लेबल ऑर्डर। ओके, और अगर आपको यहाँ पे लेबल ऑर्डर करना है देन यू कैन अप्लाई द, ओके, जो कि हम लोग ग्राफ में देखेंगे।
And in next session, we will discuss depth knowledge of the recursion. So the recursion is the heart of, sometimes we can say it is the heart of the competitive programming. बहुत सारे problems इसके through solve होते हैं, बट कभी कभी ना हम लोग बेसिक्स में गड़बड़ कर जाते हैं. अब जैसे इस वाले में मैंने कहा कि रिकर्शन के थ्रू हमें ये पता करना है कि वो पर्टिकुलर नोड अगर अवेलेबल है तभी हम ऑप्शंस देंगे कि लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में. तो हम इनमें से कोई भी एक रिवर्सल एल्गोरिदम में चेक करेंगे और जैसे ही वो पर्टिकुलर हमें नोड मिला हम उसका रेफरेंस रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अगर मिला तो रेफरेंस रिटर्न कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्री ऑर्डर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कहा कि भैया अगर वो नोड मिल जाए, नोड एस्ट्रिक, और यहाँ पे हम फाइंड करने के लिए कौन ले लेंगे, कॉमा कैर. ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ रूट ऑफ डेटा इक्वल टू डेटा, तो क्या कर दो, यहीं से रिटर्न कर दो जहां पे हमें डेटा मिल गया. ओके, हमने उसी रूट को रिटर्न कर दिया. तो ये हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि वो पेरेंट्स कहाँ पे, और जब वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस वाले कोड में, तो हम फिर यूजर से सेम वही पूछेंगे कि भैया नोड तो मिल गया, अब आप बताओ कि आपको इंसर्ट क्या करना है. और अगर नोड नहीं मिला है इसमें तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे रिटर्न कर दो नल. तो नल का मतलब क्या होगा, नोड नॉट फाउंड. तो नोड अगर मिल गया तो यूजर से पूछिए कि नोड मिल गया, वेयर यू हैव टू इंसर्ट, लेफ्ट और राइट. तो लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू वो नोड कर दीजिए, और अगर राइट में इंसर्ट करना है तो रूट ऑफ राइट में आप इंसर्ट कर दीजिए. ओके, तो इसके हिसाब से जैसा हमने एरे वाले में बनाया था, लाइक हम पूछ रहे थे यूजर से कि वेयर यू हैव टू इंसर्ट if the node is available, if the parent is available, the same logic we can include here. Okay, सो अल्टीमेटली मैं फाइनली ये वाला कोड भी आपको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट इनटू दैट. ओके, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो. आप अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन जस्ट पुट अप योर हैंड. ओके, और अगर लाइक आई एम नॉट एबल टू सी द डिटेल्स, चैट विंडो मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है ना, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, इस लाइन नंबर में गड़बड़ है. सो आई विल गेट इनटू दैट आल्सो. ओके, so that's from my side for today's sessions. In next lecture we will start the recursion, and the recursion is very important for you all. So we will create the activation records. We will try to learn how we can create a recursion algorithms. Okay, and we will discuss a number of questions, those all are based on recursions. Okay, so we will see you into next session. Thank you very much. Dear learners, is there any query? Is there any query? Yeah, there is someone who want to ask. Okay, tell me. I think there is no any query. Okay. So today we learned about the role of nodes in trees, and how the nodes are created in trees, various operations that can be performed in trees, storage in arrays, the recursion process, and he also informed you that recursion plays a very vital role in programming, and you will thoroughly learn it in our new sessions, next sessions. So please
other concepts. Still, you have any query, you can ask right now. You have the time. If there is no query, to give us your valuable time, your knowledge to us. I hope all the participants have gathered much of the knowledge, much of the experience, and how to find complex programming, problem solving. So I hope they will definitely get the benefit from it. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. We are presenting the certificate to our respected guest, Mr. Dhaneshwar Kumar. Thank you so much, sir. Participants, we will resume the next session at 11:40. So there is a 10 minutes break.